ओम सदगुरु कबीर साहेब की जय। સૌ ભક્તજનોને રામ કબીર। હું આ ભજન ગાવાનો છે તે આપણા કબીર સાહેબે લખેલું છે ને તે આપણું શરીરનું જે કન્સ્ટ્રક્શન છે તે બાબતમાં કબીરજી આપણને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે। રામ કબીર। बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। पांच तत्व का बंगला बनाया, तीन गुण का किया गारा। रोम रोम की छाया छाची, बोलन हारा न्यारा। बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। असी बंगले का 10 दरवाजा, बीच पवन का थंब। आवत जावत कोई नव देखे, आवत जावत कोई नव देखे। यही बड़ा चंबा बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। 5-25 सु पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। सूरत नुरत का मृदंग बाजे, सूरत नुरत का मृदंग बाजे। 36 रागिणी गावे, बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, बंगला खूब सवारा। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, बंगला खूब सवारा। असी बंगले में साहेब बोले, असी बंगले में साहेब बोले। आपे सरजनहारा, बंगला अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले। सत्य नाम कबीर, सत्य नाम कबीर। गुरुदेव कबीर, गुरुदेव कबीर। आओ आओ रे कबीर, आओ आओ रे कबीर। भीड़ भांगो रे कबीर, भीड़ भांगो रे कबीर। बंदी छोड़ रे कबीर, बंदी छोड़ रे कबीर। दर्शन दे जो रे कबीर, दर्शन दे जो रे कबीर। दर्शन दे जो रे कबीर, दर्शन दे जो रे कबीर। सत्य नाम कबीर, सत्य नाम कबीर। गुरुदेव कबीर, गुरुदेव कबीर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होय। कबीरा दुख काहे को होय। पोथी पढ़ कर जग मुआ, पंडित बयान कोई। दाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाय। बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताय। कबीरा गोविंद दियो बताय।
राम सिया राम 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 सिया राम राम राम। સૌને રામ કબીર. થેન્ક યુ. સૌને રામ કબીર. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. આપ સૌ ભક્તજનોમાં વસેલ કબીરના રામ આત્મા રામને સપ્રેમે વંદન. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તથા સર્વે ચેપ્ટરો અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના આ કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. બંગલા અજબ બનાયા રે જિસમે નારાયણ બોલે. કાર્યક્રમની શરૂઆતનું આ ભજન સિયાદલાના શ્રીમાન દિનુભાઈ ભક્તે ટેક્સાસ વેલીમાંથી સંભળાવ્યું. સૌને ભાવવિભોર અને કબીરમય બનાવ્યા. સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. થેન્ક યુ દિનુભાઈ. રામ કબીર, થેન્ક યુ. રામ કબીર, રામ કબીર. અમને ગાવાનો ચાન્સ મળ્યો તો આનંદની વાત છે. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ આર વેલકમ. આજે આપણી કબીર વિઝડમ ટીમે સર્વે ભક્તજનોના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી એક અતિ મહત્વનો વિષય હોલિસ્ટિક અપ્રોચ ટુ મોડર્ન ડિઝીઝ, આધુનિક રોગોના કુદરતી ઉપચારો પર માર્ગદર્શન માટે ડાઉની કેલિફોર્નિયાના શ્રીમતી નીલમજી નેગાને આમંત્રિત કર્યા છે. જોડાયેલ ભક્તજનોના આ જ વિષય પરના પ્રશ્નો કે અભિપ્રાયો સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બધા ચર્ચા કરીશું અને સમયસર કાર્યક્રમને વિરામ આપીશું. વિશ્વવ્યાપી ભક્ત સમાજમાં સદગત પામેલા સર્વે સ્વજનોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ. જીવન મૃત્યુના આ ઘટનાક્રમમાં આપણા સ્વજનોના મૃત્યુનો ખાલીપો દૂર કરવા તેમના પરિવારજનોને શક્તિ મળે, સદગતની આગળની યાત્રા સરળ અને સુખદ રહે તેવી સદગુરુને પ્રાર્થના. દર રવિવારની સવારે ભક્ત સમાજના પરિવારો આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ કબીર વિઝડમ પર નિયમિત જોડાય છે. આ સફર એક આધ્યાત્મિક વિસામો છે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં પણ સાચી સમજણ મળે છે. इन लास्ट एपिसोड नीलम जी ने उनका परिचय दिया था और थोड़ी बात की थी. नीलम जी हमारे डाउनी फैमिली के मेंबर है, मूल दिल्ली से हैं. अपना हाईटेक सॉल्यूशन नाम का बिजनेस डाउनी कैलिफोर्निया में है. शी इज हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग देयर लाइव्स इजियर विथ टेक्नोलॉजी. साथ साथ सिटी और डाउनी की भी सेवा कर रहे हैं. शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट डाउनी कैलिफोर्निया. ऑल्सो लाइफ कोच एंड डिसाइपल ऑफ गुरुमा एट द डिवाइन आर्ट ऑफ योगा सेंटर आश्रम इन लाहाब्रा कैलिफोर्निया. आश्रम पे जीवंता प्रोग्राम में मेडिटेशन, योगा और अन्य हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर गुड मोटिवेशनल स्पीकर है. હવે આપણે આજના વિષય પર આવીએ. સામાન્ય રીતે આપણા શરીરમાં કોઈ પણ રોગનું લક્ષણ દેખાય ત્યારે આપણું મન ચિંતાગ્રસ્ત થઈ જાય, બુદ્ધિના સ્તર પર ભય લાગવા માંડે અને અહમના સ્તર પર વિયોગનું દુઃખ પણ લાગવા માંડે. તો આવી દશામાં ડૉક્ટર પાસે જઈ તે રોગનું નિદાન કરાવી દવા લઈ રોગમુક્ત થવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આજે શ્રીમતી નીલમજી આપણા સૌને આવા આધુનિક રોગોના કુદરતી ઉપચારો, હોલિસ્ટિક અપ્રોચની સમજ આપશે. રોગોના મૂળમાં જઈ તે આપણા શરીરમાં કેવી રીતના આવી ગયો અને ફેલાય છે તેની વ્યવસ્થિત અને સાચું માર્ગદર્શન કરશે. દવાથી આવા રોગો દબાઈ જાય છે, મૂળથી નાબૂદ થતાં ઘણીવાર લાગે છે. તે માટે જલ્દીથી આપણું સ્વાસ્થ્ય મળે તે માટેના કુદરતી ઉપચારની પણ તેઓ સમજ આપશે. લાઈફ કોચ હોવાથી माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज टू सपोर्ट हीलिंग एंड वेलबींग. तो आइए नीलम जी, हमारा भक्त समाज के सर्वे भक्तजनों को समृद्ध स्वास्थ्य मिले ऐसी कृपा कीजिए. नमस्ते. राम कबीर सबको.
मेरा नाम नीलम निगा है, जैसे इन्होंने बताया काफी अच्छा परिचय है, थैंक यू सो मच। हम ये सेशन एक प्रेयर से शुरू करेंगे, तो सब लोग अपने हाथ जोड़े और अपने दिल के पास लगाएं, टचिंग टू योर हार्ट, आंखें बंद करें और हम एक डीप ब्रेथ करेंगे, एक्सहल करेंगे। एक बार और करेंगे, इनहेल एंड एक्सहल। और एक प्रे करेंगे, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनात्वहीतवस्तु मा विद्विषावहे। ओम। अगेन थैंक यू मुझे इनविटेशन देने के लिए और दिस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अभी जैसे दीनू भाई ने बोला, आई थिंक मैंने उनका नाम सही लिया, दीनू भाई ने बोला कि उन्होंने भजन गाया एक बहुत अच्छा, और आई थिंक उन्होंने मेरा सारी समरी जो है वो एक्सप्लेन कर दी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि अजब बंगला अजब बनाया, मुझे वो भजन सुना हुआ है मैंने, बट मैंने थोड़ा सा लिख लिया जल्दी से कि ये जो बंगला बनाया है भगवान ने, हमारे जो शरीर बनाया है उसमें वो नारायण बोलते हैं, तो हम जो बोलते हैं तो वो नारायण बोलते हैं। तो हमें, और उन्होंने बोला कि पांच तत्व का बंगला बना, ये जो जैसे पांच तत्व आपको पता ही है, एयर वाटर फायर, पूरे आकाश और ये पृथ्वी, ये पूरे पांच तत्व से बना है। जो बाहर है हमारे, वो ही हमारे अंदर है। तो कबीर जी बहुत पहुंचे हुए, आप उनको उनको बोलते हैं कि श्रोता, वो वक्ता थे और वो अपनी कविताएं लिखते थे, पर उनकी कविताओं में बहुत गहरा गूढ़ गूढ़ जो कहते हैं ना कि बताने की तरीका था उनका। अब थोड़ा हिंदी और थोड़ी इंग्लिश मिक्स बोलूंगी, सॉरी। तो वो उनका एक बहुत एक तरीका था, उन्होंने कविताओं में लिखा। अगर आप ये जो कविता इन्होंने बोली है और जो उसके बाद उन्होंने दोहे बोले हैं, अगर आप उनको सही में अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे तो आपकी जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने बोला पांच तत्व का बंगला बना, रोम रोम की छाया, वो पांच तत्व से वो बना हुआ है, और उसमें 10 दरवाजे हैं। जो उन्होंने एनर्जी पॉइंट है उनका उनका जिक्र किया है कि, और उसमें वो जो सांस है वो आती जाती रहती है। तो वो 10 दरवाजे हैं जो सांस आती जाती जाती है। फिर उन्होंने बोला मृदंग बाजे, तो उन्होंने वो साउंड का जिक्र किया है कि जो जो आपके अंदर ध्वनि है। अ, तो मैं पांच तत्वों और जो दरवाजे हैं और जो ध्वनि है वो सब इंक्लूड करूंगी आज के सेशन में, जितना भी कर पाऊंगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब मैं बोलने लगती हूँ तो इट्स उसी की कृपा है जो मैं बोलती हूँ। मैं एक अदना सा एक इंसान हूँ जो जो कि थोड़ा सा सीखा और वो ही बोलने वाला है मेरे बीच में से। जैसे बोलते हैं कि बंगला उसने बनाया और नारायण उसमें से बोलते हैं, तो मैं भी आज महासरस्वती को मैंने बुलाया कि वो ही बोले आके। सो मृदंग बाजे और वो जो रागनी गावे, अम, कहे कबीरा बंगला खूब सवारा। तो आज जो मोटिवेशन है वो यही है कि ये बंगले को कैसे संवारना है, इसको कैसे देखना है, इसको ये जो जो हमें दिया है उसको कैसे देखना है, कि इस बंगले में साहब बोले सर्जन आए, अच्छे अच्छी चीजें अंदर आए, सर्जन आए, अच्छी चीजें अंदर आए। तो जब आपके अंदर अच्छी चीजें आती हैं तो आप अच्छे होते हो। जैसे कहते हैं ना कि लेना और देना, तो जो आप लेते हो वो देते हो, तो आप अच्छी चीजें लेंगे, अच्छी चीजें देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे वो दुख काय को होए। तो वही बात है कि जब हमारे हमारे ऊपर कोई जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, सो दुख और सुख की परिभाषा तो डिफरेंट है। कई लोगों के लिए दुख की परिभाषा डिफरेंट है, कई लोगों की सुख की परिभाषा
डिफरेंट है। हम अमेरिका में रहते हैं, हमें कोई भगवान की इतनी दया है, कोई खाने पीने की कमी नहीं है, फिर भी हर किसी को पूछ के देख लो कि दुखी हूं मैं, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मुझे शारीरिक दुख है, मुझे मानसिक दुख है, मेरे परिवार ऐसा है, मेरा ये वो है। सब इकट्ठे वो सब दुख का सिमरन करते रहते हैं, दुख का सिमरन करते रहते हैं, दुख की बात करेंगे। जब किसी को मिलेंगे तो बताएंगे कि ओ मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, मेरे को वो हो गया। सो सुख में सिमरन जो करे, जो बंगला है उसमें से नारायण बोल रहा है, और आप दुखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो नारायण आपका दुखों की बात कर रहा है। सो सुख में सिमरन जो करे उसे दुख कायक होए। तो जब आप अपने सुखों का सिमरन करते हो, अगर आप अपने सुखों की बात करते हो, तो आपको दुख कायक होए। तो ब- अपने अपनी अपने सुखों का सिमरन करना मतलब कि ग्रेटिट्यूड देना, कि वो देखना कि मेरे पास क्या है, उसका सिमरन करना। फिर दुख का एक होए, वो दुख जो है अपने आप ही छट जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको, आप सब जानते हैं, सब लोग ये दोहे उन्होंने पढ़े, तो ये एक एक जो मेरी बात को कहता है, वो जो मैं कहने वाली हूँ, वो एक एक दोहा मेरी बात को कहता है। अनबिलीवेबल। मैं भगवान का इतना शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आज यही पढ़ा, दीनू भाई ने। कितनी बड़ी बात है कि मेरे को आज मैं पहली बार आपके इसमें आई हूँ, और मुझे अपनी बातें आपसे कहनी है। ये आप समाज है, और आप लोग हमेशा से बातें करते हैं, और आप कबीर के दोहे पढ़ते हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने वो ही बोला जो कि मैं बोलने वाली हूँ। ये उसी की दया है, उसी की दया है, उसको माने। फिर बोला अम, पोथी अम, उसमें लिखा है कि पोथी पोथी जग जग माया, मुझे पूरा नहीं आता, और उसका मतलब है कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली आपने, बहुत कुछ पढ़ लिया, यूट्यूब देख लिया, पर 2.5 अक्षर, आप अक्षर प्रेम का पढ़ लो अगर, तो उससे उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम, पा के नीचे रा, और ऊपर मात्रा और माँ। कितना कितना पढ़ते हैं आप 2.5 अक्षर प्रेम का? इतनी इतनी नफरत भरी है सब चीजों के लिए, कि प्रेम के लिए देखते हो कहीं कभी जब आप किसी को मिलने जाते हो तो प्रेम की बातें करते हो? पहले तो यही बताएंगे क्या हाल है, क्या हाल है, ओके, शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी किसी ने बोला था कि मुझे ये था, ये पैदा तो नहीं हुआ था आपके साथ, आ गया, तो सोचो कैसे आया। वो 2.5 अक्षर प्रेम का कहाँ गुम गया था? जो माइंडफुलनेस है वो कहती है कि जब आप अपने आप को होल्ड करते हैं किसी चीज के लिए, कोई आपको कुछ मना करता है या आप कुछ करना चाहते हैं और आप वो कर नहीं पाते हैं, तो आप दूसरों को ब्लेम देते हैं कि ओ मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरे बच्चे थे ऐसा, ये हुआ, मेरे पास पैसा इसलिए नहीं आया, या कुछ भी कहे, या मेरे बाल इसलिए गिर गए क्योंकि मैंने डाबर आंवला का तेल नहीं लगाया। थोड़ा मजाक की बात है, मैं बीच में हंसती भी रहती हूँ, क्योंकि बहुत खुश रहना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी मैं बात करूंगी अभी। तो वो वही चीजें हम इकट्ठी करते रहते हैं। तो वो कैसे आया? वो था नहीं, वो आ गया। वो चीजें जब हम मिलते हैं तो बातें करते हैं उसकी। कहते हैं सिमरन, उन्हें बोला कि सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे। ये जो दुखों का सिमरन है, ये नहीं कह रहे कि जब वो दुख होता है तो भगवान का नाम लेते हो, शायद वो भी होगा, पर मेरी डिक्शनरी में ये कहता है कि जब आप बात करते हैं, अपने दुखों की बात करते हैं, जब अपने दुखों की बात करते हैं तो सिमरन, जिसको आप ज्यादा याद करते हैं वही आपके पास आता है। ये तो आपने हमेशा से देखा होगा कि जिसको आप ज्यादा याद करते हैं उसका फोन आ जाता है, जिसको आप ज्यादा याद करते हैं वही आपके पास आता है। पर हम कभी अपने आप को देखते हैं कि हम किसको ज्यादा याद करते हैं? हम अपनी कमियों को ज्यादा याद करते हैं।
हम अपने दुखों को ज्यादा याद करते हैं, हम अपने खाली गिलास को ज्यादा याद करते हैं कि मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, मेरी पत्नी खाना नहीं बनाती, मेरे को आज ये नहीं दिया, आज मैंने ये नहीं किया। उसमें मैंने ये नहीं किया वो बहुत कम है, पर दूसरों ने आपके लिए क्या क्या किया क्या नहीं किया वो बहुत दुख है कि अब मैं ये चाहता था पर ये नहीं हुआ। वो सारे दुख आपको पता भी नहीं लगता कि कब वो आपकी ग्रंथियां बन के, गांठें बन के आपकी बॉडी में चले जाते हैं, और फिर वो रूप ले लेते हैं कोई नामों का। जैसे कि पहले भाई ने बोला कि इतने सारे नाम थे, फिर मैंने अच्छा खाना खाया और फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। तो देखो कि अंदर क्या डाल रहे हैं आप। विचार, खाना, पीना और सुनना, वो जो आंखें जिससे आप देखते हैं, वो जो कान जिससे आप सुनते हैं, जो मुंह जिया, जो टेस्ट है, जो पांच तत्व है, जो वो क्या क्या आप क्या अंदर डाल रहे हैं अपने। तो इस बारे में यही जो मेरे सेशन होंगे उसमें सिर्फ यही है कि अपने और फिर लास्ट टाइम एक और किसी ने बोला था, पता नहीं मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, किसी और ने भी एक बोला था कि वो चिंता ऐसी डाकनी, ओ या काट कलेजा खाए वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए। तो सबको पता है कि चिंता बहुत बुरी चीज है और वो आपको बीमारियां देती है। स्ट्रेस कहते हैं उसका नाम, स्ट्रेस इंग्लिश में कहते हैं कि बीमारियां देती है। पर अगेन बहुत सारे स्पीकर हैं बोलेंगे कि वो स्ट्रेस हटाओ, स्ट्रेस हटाओ। कैसे हटाएं स्ट्रेस, क्या करें? क्योंकि स्ट्रेस तो आती है, राइट? अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं और आपको कहीं पे पहुंचना है, तो आप कैसे कहेंगे कि स्ट्रेस नहीं आएगी मुझे? मुझे तो आएगी स्ट्रेस। किसी ने कुछ किया, जो भी तरीका है स्ट्रेस आने का, तो वो तो आएगी आएगी। कहते हैं कि जैसे बारिश है वो तो गिरती गिरती है, हम क्या करते हैं बाहर जाने से पहले छाता ले लेते हैं ताकि वो हम पे ना गिरे, या हम पे उसका इतना असर ना हो कि हम बीमार पड़ जाए। तो यही लाइफ कोचिंग, यही लाइफ को जीने का तरीका, कि चिंता को कैसे उसको चिंता को चिता समान ना बनाए, उसको अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दें। तो उसमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें हम मोटिवेशन बातें करके हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद वो पॉइंट आता है कि हम वो चीजों से दूर रहें, ताकि हमें हमें हमारे अंदर ग्रंथियां ना बने, ताकि हमारे अंदर बीमारियां ना बने। तो अगर चिंता आ गई और डैमेज हो गया, और अभी तो मेरे को ब्लड प्रेशर है, अभी तो मेरे को शुगर है, तो उसको कैसे भगाएं? कहते हैं ना कि यहाँ पे किस किस के घर में एडीटी है, जरा अपना हाथ खड़ा करो। जो एडीटी है, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि लगाते हैं, किस किस के घर में वो एडीटी लगाया हुआ है? तो मुझे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने सबने हाथ खड़े किए। हमने क्यों एडीटी लगाया? कि अगर कोई चोर हमारे घर में घुसने लगता है तो हमें अलार्म आ जाए, और वो हमारे घर में घुस ना पाए, हम पुलिस आ जाए ताकि वो हमें हमारे घर में घुस ना पाए। तो क्या हमने अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में क्या कोई एडीटी का अलार्म लगाया है, कि जिससे दुख, चिंता, बीमारियां, ऐसे चोर ना घुस सके घर में, हमारे अंदर ना आ सके? हमने क्या लगाया अपने लिए? क्या हम अपने आप को देखते भी हैं? क्या हम अपने आप को बचाना भी चाहते हैं? कभी सोचा है कि वो अपने घर के लिए तो एडीटी लगा लिया मैंने, कि जब आएंगे लोग और पुलिस आ जाएगी और हम बच जाएंगे। ये भी पता है
कि जब मैं मरूंगा तो सब चीजें इधर ही रह जाएंगी, ये भी पता है, फिर भी इतना प्यार। और जो ये बॉडी है जो कि तुमने जन्म लिया, जिसमें जैसे ही उन्होंने बताया कि ओ नारायण बसते हैं, ये बंगला दिया हमें, ये हमें शरीर दिया, ये बंगला दिया। जस्ट सोचो, इमेजिन करो कि वो बंगले के बारे में कभी सोचा है हमने? क्यों, इसकी सेफ्टी के लिए या इसको खुश रखने के लिए और इसको ठीक ठाक चलाने के लिए अंत तक क्या करें? कोई एडीटी के बारे में सोचा है? कहीं गूगल किया है कि वो क्या करूं कि वो आए ही ना चोर अंदर? ये जरूर गूगल किया कि बीपी हाई हो गया तो क्या करूं। ओके, यूट्यूब के सारे चैनल देख लिए, वो उन्होंने बोला कि डाइट करो, उन्होंने बोला कि घास पे चलो, उन्होंने बोला कि ऐसे करो। ओके, वो भी थोड़े से कर लिए, फिर वो लगा कि नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होता, मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई लेने। डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयों के लिए कोई मनाही नहीं है, जो जो आपको जिसने डॉक्टर ने बोला है वो करते रहना है। ओके, अगेन मैं दोबारा से मैं शुरू में बोलना भूल गई। मैं यहाँ पे कोई मैं डिस्क्लेमर बोलती हूँ कि मैं किसी को ठीक करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, और मैं कोई ऐसा कोई क्लेम नहीं करती हूँ कि मैं ये करूंगी। ये सिर्फ बातें हैं जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और वो आपकी आपकी मर्जी है, आप अपनी जिंदगी में उतारे या ना उतारे। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई डॉक्टर की दवा बंद कर दें या आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहे, पर माइंडफुलनेस की कम से कम देखे तो सही कि मैं यहाँ अपने कुर्सी पे बैठा हूँ या मैं अपने बेड पे बैठा हूँ तो मेरे पैर कहाँ लगे हैं, मेरे पैर कहाँ छू रहे हैं? क्या उसके उसके तलवे छू रहे हैं, या वो जो कर्व्स है वो छू रहा है कि नहीं छू रहा? वो मेरी जो हील है वो क्या है? वो गूगल सबके लिए है। कभी अपने बारे में सोच के देखना बैठ के कि वो मैं क्या हूँ। तो उसके लिए हम थोड़ी बात करेंगे। अभी जैसे मैंने सोचा था 11 बजे तक मैं ये बात करूंगी, तो 11 बज गए हैं। उसके बाद मैं अम, थोड़ा और बात करूंगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। उसके बाद मैं एक आपको मेडिटेशन पे लेके जाऊंगी। वो मेडिटेशन जो है वो टू जस्ट गो इनसाइड यू, कि आप अपने अंदर जाके और देखें कि यहाँ पे क्या क्या है। तो मतलब ये होता है कि अपने आप को टाइम देना। सब कुछ दौड़ लिया, सब कुछ दौड़ लिया, दुनिया में पैसा कमा लिया, फिर घूम घुमा के वहीं आ जाते हैं कि मछली पकड़ने जाता हूँ मैं, क्योंकि वहां मुझे शांति मिलती है। भी तो पहले ही गांव में बैठा था, आराम से रहता था, तब तेरे को लगा कि नहीं मेरे को तो वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। बाद में ढूंढते हैं कि ऐसा पीसफुल जगह हो, जो गांव हो, जहाँ पे लाइट ना हो, ताकि मैं आराम से, मेरे को कोई बीमारी ना हो। फिर ढाक के 3 पात वहीं पुरानी उसी दुनिया में आ जाते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम माइंडफुल रहते हैं, अगर हम वो चीजें जो हमें गांव में मिलती हैं, वो जो खुशियां हमें मिलती हैं, वो हम यहाँ पे भी प्रिटेंड कर सकते हैं। तो हम वही बात करेंगे। साइंस को लाते हैं थोड़ा सा बीच में, क्योंकि हर चीज में लॉजिक होना जरूरी है। तो साइंस में तो आपकी बॉडी भगवान ने बनाई है, उसमें हर चीज परफेक्ट बनाई है। ओके, पांच पांच इंद्रियां दी हैं उन्होंने, अम, जो कि आप इनटेक करती हैं, जैसे कि आंखें हैं। अगर आप आंखें बंद कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं है आप यूज करें ना करें। कान है, बंद कर लेंगे, जरूरी है, आपकी मर्जी है, यूज करो नहीं करो। ओके, मुंह है, खाना खाओ नहीं खाओ मर्जी है आपकी। ओके, सो ऐसे ही इंद्रियां उन्होंने दी है। पर जो उन्होंने सांस दी है आपकी, जब आप पैदा हुए तब आपके पास सिर्फ आपको सांस थी, आपको उल्टा लटका दिया और थप्पड़ मारा, ऐसे धप धप किया डॉक्टर ने कि वो ये ब्रीद करता है कि नहीं, रो के दिखा, रो के दिखा, मतलब तुम्हारे अंदर सांस आ गई कि नहीं आ गई। तो वो सांस आपको वो शरीर के अंदर भगवान नारायण आए। ओके, तो वही सांस जो है वो अंत समय तक चलती रहती है, जब तक आप मर नहीं जाते। अभी मैं हूं, मेरा नाम है, कि मेरा नाम है कि मैं नीलम हूँ, और अगर वो सांस नहीं है तो मेरे को कहेंगे कि ये डेड बॉडी है, ये बॉडी पड़ी है, बॉडी नाम भी ले लेते हैं।
नाम भी माता पिता ने दिया और ले भी लिया, तो तुम क्या आए, खाली हाथ आए थे खाली हाथ गए। तो ये जो छोटी सी दुनिया है, जो बीच का पार्ट है, जो हमें बॉडी मिली है, वो कैसे काम करती है, वो भगवान ने इंजीनियरिंग करके दी है पूरी बॉडी। सब कुछ परफेक्टली चलता है, सांसें अपने आप चलती हैं। जो इमेजिन करें अगर उसने बोला होता कि सांसें भी अपने आप मर्जी से लेंगे मर्जी से नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। उसने बोला नहीं नहीं भैया, ये इनकी बस की बात नहीं है, इन सांसें तो मेरे कंट्रोल में ही रहेंगी। और उतनी सांसें दी हैं जितनी की आपको मिलनी थी। अगर आप उनको उनको जल्दी जल्दी चला देते हो तो चली जाती है। और अनदर थिंग, अगर आप कुछ खाना खाते हो, वो इतना अच्छा सिस्टम है, यहाँ चबाया जाता है, वो आगे जाके एंजाइम बनते हैं, वो जो केमिकल है वो गिरता है खाने पे, तो फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो पेट में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर वो अपने आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। वो जूसेस जाते हैं इधर, कि वो खून बन गया, हृदय को चला गया, या जहाँ पे भी लंग्स किडनी है, फिर जो वेस्ट है वो जो है वो छोटी से छोटी आंत में बड़ी आंत में आ जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो सिस्टम बना हुआ है पूरा। फिर उसमें फिर उसमें उन्होंने कुछ केमिकल्स बनाए हैं जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है, कि बॉडी जो है वो रिलीज करती है, जैसे साइंटिफिक है ना, रिलीज करती है। आपको ही पता है, डोपामिन, कोर्टिसोल, वो सब नॉलेज है आपको, वो सारे बनते हैं। ओके, तो खुशी के केमिकल बनते रहते हैं, और वो ठीक से काम करते हैं, दिमाग ठीक से चलता है, लंग ठीक से चलते हैं, हार्ट ठीक से चलता है, किडनी ठीक से चलती है, डाइजेशन ठीक से चलता है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, उन्होंने एक और उन्होंने एक और चीज बनाई है, कि जैसे कि इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा, तो बॉडी में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। ओके, उन्होंने वो भी बनाया है कि जब इमरजेंसी होगी तो क्या होगा। तो जब दिमाग को जब पता लगता है, मान लो अर्थक्वेक, मान लो आप खाना बना रहे हैं, आपके घर में खाना बन रहा है, सब कुछ आप टीवी देख रहे हैं, तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या करते हैं, सब कुछ बंद करके आप बाहर चले जाते हैं, राइट। सब कुछ बंद करके बाहर। बॉडी में भी वही बना हुआ है। जब वो जब उसमें कोई स्ट्रेस आती है, जो चिंता आती है, तो वो सब कुछ बंद करके उसको ही हैंडल करने में लग जाते हैं। आप सोचो कि आपका घर नॉर्मल चल रहा है, खाना बन रहा है, काम पे जा रहे हैं, कारें चल रही हैं, अगर बार बार ही अर्थक्वेक इमरजेंसी आती रहे तो कैसा रहेगा। मामला अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि दिमाग तो यही रहेगा कि कॉस्को जाके किट लेके आ जाएं, जो खाना पता नहीं मिलेगा कि नहीं ना, पानी की बोतलें लेके आ जाएं, जल्दी से रख लें, इमरजेंसी। तो उसमें ये थोड़ी देखेंगे कि वो पत्नी खाना जो है नमक ठीक से डाल रही है कि नहीं डाल रही है, हल्दी ठीक से डाली, सात्विक फूड बनाया कि नहीं बनाया। दिमाग ही नहीं काम करता। दिमाग तो लगा है कि वो इमरजेंसी है। तो ऐसे ही बॉडी के पार्ट्स है, जब आप उनको शॉक देते रहते हैं, जब उसको लगता है कि इमरजेंसी है, दिमाग ऐसी इंफॉर्मेशन बॉडी को देता है, वो सारे केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसमें ज्यादा शुगर होती है, जो कि इमरजेंसी के लिए बने हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है जल्दी एक्टिवेट हो जाए। पर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्से हो जाते हैं। टीवी देखा तो गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोला तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया तो बॉडी को थोड़ी पता है कि ये रियल इमरजेंसी नहीं है, ये तो ऐसे ही इसने दिमाग से बना रखा है, उसने बोला ये गुस्से हो गया, उसको लगता है कि ओ ये तो कोई अटैक हो गया, इसको तो गुस्सा आ गया, तो मुझे तो वो सब कुछ छोड़ के पूरे जो अंग, अपने लंग्स वगैरह काम कर रहे थे, जो हार्ट वगैरह, वो सब सिकुड़ जाते हैं और वो सब रुक जाते हैं, और वो केमिकल वो छोड़ने लग जाते हैं जो कि इमरजेंसी वाला है। तो जब वो इमरजेंसी वाला केमिकल आपकी बॉडी में ज्यादा आता रहता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली नॉर्मल चीजें नहीं रहती। फिर कहते हो ब्लड प्रेशर हो गया, फिर कहते हो शुगर बढ़ गई, फिर बोलते हो कि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, फिर बोलते हो माइग्रेन हो गया, फिर बोलते हो कि ओ आर्थराइटिस हो गया, फिर बोलते हो बहुत, पता नहीं कितनी लाखों तरह की बीमारियों के नाम है।
जो सब रटे पड़े हैं। ये नहीं सोचा कि चिंता डाकनी अंदर कैसे आ गई, मेरा एडीटी क्यों नहीं लगा। प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को देखने की। माइंडफुलनेस कहते हैं उसको, बीइंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को देखो कि क्या हुआ था। जब मैं 16 साल का था तब तो ऐसा नहीं था। तब तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, मैं तो छलांगे मार मार के काम करता था, मैं तो यहाँ भी ये भी मोटल ले लिया, वो भी मोटल ले गया, शाम को जाता था। तो क्या हुआ बाद में? आप कहते हैं ना कि वो हम तो हम बुढ़े हो गए हैं, अब तो लाते अपने आप ही नहीं चलेंगी। भगवान ने ऐसे नहीं बनाया। आपने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं कि वो फलानी जगह पे गांव में लोग हेल्दी रहते हैं, वहां पे लोग हेल्दी रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, बंदा 120 साल जिया, 80 साल है, उसको कोई बीमारी नहीं है, सब पता है। उसने क्या आपको ऐसे बना के भेजा था कि वो इस ये जब 62 का होगा तो इसको तो ये दे देना है? नहीं, वो तो सबके लिए, नारायण का बंगला तो सबके लिए बहुत अच्छा है। उसने तो, इसमें तो नारायण ने रहना है, तो उस बंगले की सफाई करनी पड़ेगी। उस बंगले को देखना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या क्या रख रहा हूँ और क्या क्या निकाल रहा हूँ, और जो नहीं चाहिए उसको निकालें, क्लीन करें। तो वो अम, हम वो चीजें करेंगे। सो सबसे पहले, अगर आप बैठे हैं तो ठीक से बैठ जाएं अपनी। आई वॉन्ट यू टू स्पाइन स्ट्रेट, और मीन्स अपने आप को देखने के लिए बोलूंगी। ये कोई मेडिटेशन एक्सरसाइज नहीं है, ये थोड़ा सा ही है कि आप कैसे जन्म लिया आपने। ओके, क्या हुआ था। कई लोगों को ये कोई लोगों को तो यही डिप्रेशन रहता है कि मैं वर्थ इट ही नहीं हूँ, कि वो मैंने ये क्या किया, मेरा क्या है। वो सारी जब वो नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में, तो वो सब बॉडी में ही रुकती है। तो फिर उसको हमें पहले तो आने नहीं देना, फिर बाद में बात करेंगे कि निकालना कैसे है उसको। तो पहले हम अपने उसमें जाते हैं कि हम जस्ट इमेजिन करें, कि आंखें बंद करके इमेजिन करें कि ऊपर चित्रगुप्त का वो दरबार लगा हुआ है, और वो आपकी आत्मा जो है वो वहां पे पहुंची है, तो और वो कह रहे हैं कि इसका जन्म होने वाला है, तो इसको कौन सी बॉडी दे। तो चित्रगुप्त के वो जो 7-8 लोग होते हैं, वो जस्ट इमेजिन करें कि वो देखें अपनी आंखों से कि वो खोल रहे हैं, वो पन्ने खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि वो इसको, इस आत्मा को क्या करे। इसका पेड़ बना दे, या इसका कोई जानवर बना दे, कोई इसको इसको कीड़ा बना दे, या फिर कोई तितली बना दे इसको, या इसको इसको पत्थर बना दे, या इसको नदी पानी बना दे। तो वो देख रहे हैं आपको, तो वो आपके क्रेडिट देखते हैं कि वो ये क्या, इसके क्या क्रेडिट है, ये क्या अच्छे कर्म करके आया है, जो क्या है इसके पास अच्छा। तो वो देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसको मनुष्य जन्म देते हैं। मनुष्य जन्म देते हैं, तो उसी टाइम आपके माता पिता जो होते हैं वो आपको रिसीव करने की तैयारी करते हैं, और आपको वो एक आप आपकी जो आत्मा है उसको एक बॉडी मिल जाती है। आप एक अणु के जैसे अंदर आ जाते हैं, और आपको एक बॉडी मिल जाती है। आप हो सकता है कॉकरोच में भी जा सकते थे, आप हो सकता है पेड़ भी बन सकते थे आप। पर आपको डिसीजन लिया भगवान ने कि वो ये तो पुण्य इसके ऑलरेडी क्रेडिट है, ये तो मनुष्य जन्म में भेजेंगे इसको ताकि ये अच्छे काम करेगा। ये मनुष्य जन्म में भेजेंगे ताकि ये और क्रेडिट करेगा और ये जन कल्याण करेगा। तो ऐसे ही नहीं आपको ये मिल गई। पहले तो बॉडी इसलिए मिली है क्योंकि आप कुछ अच्छा करके आए हैं। तो पहले तो ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, एक्सक्यूज मी, ग्रेटिट्यूड योर सेल्फ, कि मैं इस जन्म में आया हूं तो ऐसे ही नहीं है। उसके बहुत सारी चीजें मेरे मेरे क्रेडिट हैं जो मेरे मुझे मिले हैं और मैं आया हूं। तो पहले तो अपने आप को बहुत अच्छा समझे कि मैं इस मेरे को इस जन्म में आया है और मेरे को इतने मानव शरीर मिला है, मैक्सिमम क्रेडिट है। फिर वो शरीर मिला आपको, फिर वो शरीर डेवलप हुआ, उसके बाद वो आप बाहर आए, फिर आपको सांसें मिली। ओके, आपको सांसें मिली, फिर आपको धीरे धीरे आपने चलना सीखा, आप चलना सीखते थे, कभी आप गिर जाते थे, आपने खाना सीखा, कुछ नहीं आता था। एक मांस का क्या कहते हैं, गठड़ी थी पेट में। फिर वो उसको उसको सांसें मिली, और वो डेवलप होने लगा, आप उसको खाना देने लगे।
वो आपके माता पिता आपको आपको खाना देते थे, आप डेवलप होने लगे। कुछ नहीं आता था, ना खाना आता था, ना ना पॉटी करना आता था, कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे सीखा। आपने देखा कि बच्चे कैसे जोर से हंसते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ वो चीजों को सीख रहा है। तो जैसे ही आप बड़े हुए, थोड़ा सा हिलने डुलने लगे या भागने लगे, चलने लगे, तो पहले ही कहने लगे कि वो कि तुम गिरे क्यों, तुमने ये मुंह में क्यों डाला, तुमने ये चीज, कहते हैं ना बच्चे कभी कभी मुंह में डाले तो आप उसको डांटते हैं कि वो ये गंदी चीज है, मुंह में नहीं डालनी। तो आप फिर भी डालते हैं, तो आपको और डांट पड़ती है। आप उस टाइम जब आप पहली बार सब कुछ ठीक चल रहा था, वो आपको खाना दे रहे थे, आप हंसते थे, फिर वो एक छोटा सा डर का कण आपके अंदर आ गया कि ओ ये क्या है, मुझे ये नहीं करना है। फिर आपको चीजें, इवेंट सिखाए जाते हैं कि वो ये करना है, ये नहीं करना है। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लग जाती है उस टाइम। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद की बहन है, इसको धक्का नहीं मारना, इसको थप्पड़ नहीं मारना। तो वो सब चीजें नई है आपके लिए, आपको नहीं पता वो आपके लिए नई चीजें हैं, पर आप लर्न कर रहे हैं उसको कि वो, और उसी हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है कि आप क्या सोच रहे हैं उस टाइम कि उसको धक्का क्यों नहीं मारना। नहीं, मैं तो मारना चाहता हूँ, ये मुझे तंग कर रही थी, पर धक्का मारा तो मेरे पापा ने मारा मुझे आज। पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। फिर स्कूल में गए, स्कूल में टीचर ने बोला कि ओ ये आप तो आपको पढ़ाई करनी है, और एक दो ही होते हैं, और ये दो ही पढ़ना है। तो आपने पढ़ना सीखा। अगर आपने बोला कि नहीं एक और एक तीन होते हैं, तो आपको पहले तो बोला नहीं बच्चे, एक और एक तीन नहीं होते। फिर बोला कि नहीं एक और एक तीन तीन होते हैं। आप आपको नहीं मालूम, आप तो बच्चे हैं, आपको क्या पता, आप बोल रहे हैं जो आपको सिखा रहे हैं, आपका मन कह रहा है कि एक और एक तीन होते हैं, आप बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक दो बारी प्यार से बोला, बाद में थप्पड़ मारा कि क्या है बार बार एक एक तीन होते हैं, समझ नहीं आता तेरे को, पागल है तू, कम दिमाग है तेरा। तो क्या बच्चे के मन में आया कि मैं कम दिमाग का हूँ। वो कम दिमाग क्या होता है, उसे क्या पता। जो जो चीजें बोली जाती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बनती जाती है, और आप उसको ग्रो करते रहते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। फिर आपको आपको दुनिया में जाना है, आपको काम करना है, आपको मीन्स 100 तरह की चिंताएं। आपने देखा ही है बच्चों को, एग्जाम में है, ये है वो है, एग्जाम में नहीं आए, नंबर्स नहीं आए, तो वो चिंता है, और वो पूरा स्ट्रेस अंदर भरता ही जाता है। क्यों कंपटीशन, क्यों भागना, कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो जैसा है। अपने आसपास वालों को जो जैसे ही है उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। अगर आपके बच्चे अगर वो ठीक से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उनको बोलना जरूरी है, पर उनको एक्सेप्ट भी करें। आपको लगता है कि आप उनको बहुत पढ़ा के, उनको अच्छी 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 करके उनके लिए अच्छा होगा। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स सबका ये होता है, मेरा भी है। पर जब आपकी सेहत पे आता है कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपके अंदर वो अर्थक्वेक वाले केमिकल्स रिलीज ही होते जा रहे हैं, तब आपको उसको छोड़ना होगा। आपको इसने ये बोल दिया, आपको इसने वो बोल दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, अ, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं कि वो मेरे को बीमारी है, तो उनको सबको चैनलाइज करके छोड़ो, छोड़ना, माफ करना करो। कि वो आज मैंने 5 होटल नहीं ले पाया बिकॉज वो मेरी पत्नी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। कुछ कुछ भी, आप अपने आप को देखें क्या किया आपने। और फिर उन चिंताओं को मन में से निकालने की कोशिश करें। उस दौर में जाएं कि जहां पे आपको बीमारी नहीं थी। मान लो आप 16 साल के थे, या 17 साल के थे, या 20 साल के थे, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सोचे कि वो प्रॉब्लम आई कैसे।
उस दौर में जाके अपने आप को मेडिटेशन करें, आप देखें जाके कि वो क्यों बीमारी आई है, और अब उसको निकालने का तरीका करेंगे कि उसको निकालना कैसे है। जितने भी कहते हैं, जितने भी लोअर लेवल की बीमारियां होती हैं, जो जो कमर से नीचे की होती हैं, हम जैसे घुटनों में दर्द होना या लाते नहीं चलना, पैरालिसिस होना, तो वो उसमें उसमें ये माना जाता है कि वो ग्रंथियां जो मन में बस जाती हैं, वो जैसे आपने कहीं जाना है, मान लो आपने कुछ करना था लाइफ में, औरतों में बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि उनको उनको वो करने नहीं दिया जाता कि जो वो करना चाहती हैं, और वो सबको ब्लेम करते हैं इस बारे में कि ओ, मैं ये नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट। जब आप वो ब्लेम गेम छोड़ देंगे कि ओ, यही मेरी रियलिटी है और मैंने ये मेरा किया है, मैंने अब इसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं इसको माफ करती हूँ कि मैं नहीं कर पाई, आप देखें माफ करके। जिन लोगों के लोअर लोअर बेल्ट से नीचे अगर है, तो वो देखें, लोगों को माफ करना शुरू करें। हर कम्युनिटी में प्रेयर होती है कि मैं सबसे माफी मांगता हूँ और सबको माफ करता हूँ। ये वाली प्रेयर करना शुरू करें और देखें कि कैसे माफी आप देके अपने आप को रोग से मुक्त करते हैं। अपर बॉडी में जैसे कि सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और शुगर है, शुगर बन रही है, तो देखिए कि वो इमरजेंसी वाली चिंताएं कौन सी आपने इकट्ठी करी हुई हैं, उनका पूरा डिटेल में जाएं कि वो मुझे क्या हुआ था, या जब मेरे को शुगर हुई थी तो मेरे बेटे का रिजल्ट आया था, या फिर वो घर से बाहर चला गया था और वो सुन नहीं रहा था, तो कुछ तो ऐसे हुआ था उस टाइम। आप उस दौर में वापस जाएं और उसको पूरा डिटेल में देखें कि वो मैंने क्या बोला था, और उसने क्या बोला था, और उसका रिएक्शन क्या था, और मैंने क्या सोचा बाद में। एक तो होता है कि आप खुले दिल से जाने देते हैं चीजों को, एक होता है कि आप ऊपर से जाने देते हैं, अंदर से होल्ड करके रखते हैं। जब तक आप अंदर से होल्ड करके रखेंगे, तब तक आपको वो जो चिंता डाकनी है वो खाती ही रहेगी। आपने उसका इलाज खुद ही करना है, आपने उसको देखना है कि कहाँ पे बैठी है वो। तो हम बाद में जब ये एंड होगा, तो मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी, उसमें 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 मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे उसको एवरीडे निकालना है, उसको कैसे अपने अपने से निकाल ही देना है आपने। अम, ये मेरे थोड़े से नोट्स थे यहाँ पे। यस, ओके। सो ऐसे इसमें किसी का क्वेश्चन है कि ओ, मेरे को ये बात समझ नहीं आई और मेरा ये सवाल है कि वो अंदर आने से कैसे रोकना है उसको। नमस्ते नीलम बेन। हाँ जी। हाँ, आपने जो अ, बहुत अच्छा एक पहले तो हम कबीर संत कबीर साहब हमारे गुजराती में कहते हैं कि मनसा देह देवता को दुर्लभ। जो आपने बताया ना शुरुआत शुरुआत में कि मनुष्य का जो देह है वो देवता को भी दुर्लभ मिलता है। हम इतने फॉर्च्यूनेट हैं कि हम मनुष्य रूप में आए, क्योंकि वहाँ से ही आप कहा कि भाई एक जो अवेकन होकर आगे की प्रगति कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ये जो थ्रू एक्सेप्टेंस, स्वीकार जो हम गुजराती में बोलते हैं, स्वीकार भाव से और फॉरगिवनेस, सबको फॉरगिव करके, और जो जो क्लींजिंग आपने कहा कि भाई जैसे हम नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं, क्यों? कि भाई हमारा शरीर का जो ऊपर धूल है और जो भी जमा हुई है, तो उसको हम क्लीन कर देते हैं। तो इंटरनल क्लीनिंग हम कैसे करें? क्योंकि वो
तो वो तो बाहर की क्लीनिंग हो गई, जो नहाना है वो तो बाहर की क्लीनिंग हो गई, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग कैसे करते हैं? और आप हमें ले जाइए मेडिटेशन में कि भाई वो इंटरनल क्लीनिंग थ्रू मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पे आएंगे। ये इवन की जो मैं करती हूँ वो हर एक अलग अलग प्रॉब्लम्स का भी हम अलग अलग से करते हैं। जैसे कि हमें होता है ना, कभी कभी बहुत शब्द हमें बहुत तंग करते रहते हैं कि वो किसी ने एक बोल दिया, अभी अभी बोल दिया, वो दिमाग में चला गया, तो उसको कैसे निकालें। अभी ये बहुत इजी है कहना कि वो तुम तुम उसको निकाल दो, उस पे ध्यान नहीं दो। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अंदर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तुम्हें वहां से निकालना पड़ता है वो। तो सबसे पहले तो ये है कि तुम माइंडफुलनेस में, मतलब तुम देखो तो सही तुम्हें हुआ क्या है, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसको कहते हैं ना, जैसे एक बहुत सारी लकड़ियां हैं, उसको तोड़ोगे तो टूटती नहीं है, अगर एक 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 लकड़ी को तोड़ोगे तो टूटती है। तो ऐसे ही जब तुम बहुत डिटेल में चले जाते हो प्रॉब्लम के, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी जिंदगी में अगर आपके आती है ना, जैसे आपको कोई कोई मुश्किल आ रही है, उसकी पूरी तह तक चले जाओ। पेपर रख लो अपने पास, लिखो कि वो क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कह रही है, ये इसका तलाक हो रहा है तो क्यों जा रही है, वो क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में जाओ। उसको देखो कि क्या होल्ड किया हुआ है, उसको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करना ही हमारा मेन मकसद है, कि हमारी जो भगवान ने बॉडी बनाई है वो पूरे केमिकल वो ठीक से रिलीज करती रहे। वो ये ना सोचे कि इमरजेंसी है, वो सब कुछ शट डाउन करो और ये करो, नहीं, वो गलत है। वो एक टाइम ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम। आप एक, मैं कहती हूँ, जैसे देखते रहते हो कि वो, आई डोंट नो, एक ऐप है जैसे, वो रिंग बेल की ऐप है, वो दिखाती है कि पड़ोस में क्या क्या होता रहता है। अब पड़ोस में क्या क्या होता रहता है कि वो यही दिखाते हैं कि ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। तो परसेप्शन क्या बन जाती है कि दुनिया ऐसी ही है। दुनिया ऐसी नहीं है। वहां पे एक डाउनी में अगर 10 घरों में लोग आए हैं, तो हजारों लोग हैं जहां पे नहीं आए हैं। पर माइंड को क्या बताया आपने? माइंड को बताया कि ये दुनिया तो बहुत खराब है, आए दिन इंडियन के घर में आके लूटते रहते हैं वो। एक, ये जो इंफॉर्मेशन जो अभी आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, वो पहले भी होता था। वो पहले भी होता था कि लोग चोरी करते थे और डाका मारते थे और लूट के ले जाते थे। पर ये जो आज एकदम एक सेकंड में आपके पास आ जाती है ना, तो वो यहाँ पे असर करती है। जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है कि वो वहां इंडियन जा रही थी, वो कहीं टेम्पा में गई, वहां उसकी चेन खींच ली, पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप में घुमा देंगे कि चेन खींच ली। टेम्पा में जो इंडियन औरतें जाती हैं वो सेफ नहीं है, कहीं पे सेफ नहीं है, कहीं पे भी चेन नहीं पहनो, तुम सोने नहीं पहनो। भाई साहब, इतनी सारी औरतें जा रही हैं जिनकी चेनें नहीं खींची गई। कॉशनरी लेने के लिए, एक कॉशन लेने के लिए पूरे दुनिया में तुमने जीना छोड़ दिया, सारे गहने बैंकों में चले गए, तो पहनोगे कब? वो जो इतने शौक से पहने हैं, वो पता नहीं हम मर जाएंगे आज, हमने कब पहने, वो पहनोगे कब? क्योंकि वो दुनिया ही ऐसी बन गई। अरे रेडिटी लगाया, तुम गहने घर पे नहीं रखने, कोई चोर ले जाएगा। भैया, अगर तुम चोर को याद करोगे तो चोर ही आएगा। यही माइंड में मैं कहने की लगी, अगर तुम बीमारी को याद करोगे, आप आप सोच के देख लेना, अगर आपको कोई कोई ऐसी बीमारी है ना, तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मुझे ब्लड प्रेशर होगा। कभी जरूर सोचा होगा, भगवान तो देता ही नहीं है कुछ भी। जरूर सोचा होगा, तुमने सोचा होगा कि वो मेरी माँ को था ब्लड प्रेशर, मुझे भी होगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि मेरे परिवार में शुगर चली आ रही है तो मुझे तो होगी होगी। भैया, तुम्हारे परिवार में इतनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं हुई, तो ये शुगर क्यों हो गई? कि ये तो मेरे ब्लड में थी। सबको पता है साइंस में कि 6 महीने के बाद ब्लड का रूटीन चेंज हो जाता है, वो निकल जाता है, नया आ जाता है। फिर कैसे शुगर हो गई? वो सबकॉन्शियस माइंड में बीज डाल दिया गया है कि वो तो मेरे तो जनरेशन से चली आ रही है, अभी मेरे को तो, मैं कहती हूँ जरा सा ऊपर नीचे हो गया ना, जरा सा भी,
एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मेरे तो है, अब मेरे को तो लगा दो, मेरा इंसुलेशन भी लगेगी मुझे, तो मेरे तो परिवार में बड़ी तगड़ी शुगर थी, अपने आप ही डिसाइड कर लिया। वो गलत है। अपने आप डिसाइड मत करो, मत बुलाओ ऐसी चीजों को। ओके, एक और बात बताती हूँ। हर एक का ऑरा होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर तुम कोई खुशनुमा बंदे के पास जाते हो ना, तो वो तुम्हें तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये बंदा बड़ा अच्छा है, राइट। और कोई 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 जिसकी क्रुक माइंड है, अगर उसके यहाँ जाते हैं ना, तो दूर से पता लगता है ये से दूर ही रहो, ये तो अजीब सा बंदा लग रहा है मुझे। वो कैसे पता लगता है आपको? वो एनर्जी है जो कि तुम्हें फील होती है। आपको आजकल तो इतनी नॉलेज भरी पड़ी है, सबको पता है कि और होता है, फलाना होता है, पर उसको यूज कैसे करते हो? वो एनर्जी तुम्हारे जो एंटेना है ना, जो जो सोच के एंटेना है, उसमें अच्छी चीजों को लाओ। एक कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होती है, सबको पता है ये बात, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये बता रही हूँ कि आप कैसे यूज करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कुछ भी। वो तो जिन के जैसे है, जो तुम बोलोगे वो तुम्हें करता है, ये भी सबको नॉलेज है। अब भैया उसको तुमने बोला, ओके जिन, सुबह से उठ के देख लो, उठते ही कहोगे कि ओ अच्छा आज ब्लड प्रेशर तेज है कि कम है। कॉल आ गई, अच्छा ब्लड प्रेशर ऐसे है, आज तो ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, और गोली कहाँ है ब्लड प्रेशर। मतलब कितना याद करते हो ब्लड प्रेशर को आप? जिसको तो याद करोगे वही तो आएगा तुम्हारे पास। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड को वही नजर आ रहा है, राइट, तो उसको नहीं नजर आ रहा। क्या है? तो आप जो कह रही वो बहुत सच्ची बात कर रहे हैं कि जो जैसे हम हमारे गार्डन में जो भी हम बोते हैं वो ही निकलता है। क्योंकि ऐसे ही जो कहते हैं ना कि भाई आप एप्पल ट्री, एप्पल का या बीज बोएंगे बोझे तो एप्पल बोझे निकलेंगे। बोए बीज कुबेर, पता आई डोंट नो किसका, और आम कहाँ से हुए। राइट, तो वो कभी तो कभी ये फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत काम करती है। तो आप अपने आप को देखें कि किसको याद कर रहे हैं, अपनी खुशियों को याद करें, खुशियों को याद करें, कुछ पढ़े अच्छा। जरूरी नहीं है, आपको जानना जरूरी नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है ज्यादा। थोड़ा सा ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप करें, पर ये नहीं है कि वो यूट्यूब चैनल, ओके यूट्यूब चैनल कैसे चलते हैं? यूट्यूब चैनल चलते हैं, अगर आप एक बार आप एक चीज को देख लोगे ना, अगर आप देख लोगे कि वो खरबूजे के बीज में क्या है, तो वो आपको सारे फलों के बीजों के बारे में बताता रहता है। वो कैसे? वो फ्रीक्वेंसी है, उनको पता है कि वो इस बंदे ने ये जानना चाहा है, तो उसके बारे में बताते रहते हैं, वो ही आता रहता है। आपने एक वीडियो डाल दिया, बहनों ने डाल दिया कि वो बर्फी कैसे बनानी है, तो वो बर्फी, तरह तरह की बर्फियां बनाना दिखाता रहे। यही दिमाग है हमारा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको वही देता है जो आप चाहते हो। आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वही। उसको लगता है कि ये यही इसको चाहिए। तो एक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मेरे को इस बात पे एक कहानी याद आ गई। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक एक लकड़हारा जो था, वो गांव में लकड़ी काटने गया। तो लकड़ी काटने गया, उसने काटते काटते रात हो गई, उसको पता नहीं लगा। उसको ये था कि आज मैं ज्यादा लकड़ियां लेके जाऊंगा, तो काटते काटते रात हो गई। अब वो रात हो गई, जंगल में काफी अंदर चला गया था, उसको वापस जाना मुमकिन नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो चलो इधर ही सो जाता हूँ। तो जैसे अंधेरा हो गया, थोड़ा जंगल भी था, जानवर भी होते हैं तो थोड़ा डर भी रहा था कि क्या है, पर उसने सोचा कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो थका हुआ था, पूरी लकड़ियां काटी थी, पेड़ के नीचे बैठ गया और लकड़ियां साइड में रख दी, और पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा सा सुस्ताने लगा। तो सुस्ताने से बोलने लगा कि वो कितना अच्छा होता कि कितनी भूख लगी है ना, कि खाना भी मैं ले आता, मेरे पास खाना होता तो कुछ अच्छा होता। तो क्या हुआ, खाना आ गया सामने। उसने देखा खाना आ गया सामने, वो वाह ये कैसे हो गया, खाना कैसे आ गया? तो उसने इधर उधर देखा, उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये खाना कैसे आ गया। तो वो थोड़ा और लालची हो गया, उसने कहा कि वो कितना अच्छा होता कि मेरे पास इसमें रसमलाई भी होती। तो रसमलाई भी आ गई। तो वो तो बहुत हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, उसने उसने क्या हुआ, जल्दी जल्दी खाना खाया कि मजा आ गया, ये तो खाना खा लिया। उसने कहा ओ वाह। तो उसने कहा कितना अच्छा होता कि मेरे पास यहाँ पे बिस्तर होता, मैं आराम से सो जाता। तो जी बिस्तर आ गया।
और बिस्तर आ गया, तो वो देख रहा है उसको कि बिस्तर आ गया, तो बिस्तर में लेट गया, आराम करने लगा। फिर कह रहा है कि अच्छा होता है कि थोड़ी अच्छी अच्छी हवा चलती है तो कितना अच्छा होता है, तो थोड़ी धीमी धीमी बड़ी अच्छी सी हवा चलने लगी। अब क्या हुआ कि चिंता चली गई, पेट में खाना आ गया, बिस्तर आ गया, हवा चल रही है, राइट। तो क्या होता है कि मन जो होता है ना, सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। ये नहीं कि मैं सो जाऊं आराम करूं ना, फिर मन ने क्या बोला कि ओ, कहीं ऐसा ना हो ये रात में कोई कोई यहाँ पे जंगल में कोई शेर वेर तो नहीं रहता इधर। तो आवाज आने लगी शेर की कहीं दूर से। फिर कहता ओ माय गॉड, ये तो ऐसे लग रहा है कि ये तो शेर आके मुझे मुझे कहीं खा ही ना जाए, मुझे खा जाएगा ऐसा लग रहा है। और शेर आया, उसको खा गया। ऊपर गया वो आत्मा, वो भगवान को कहा कि ये क्या, मैं तो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, पहले तो मुझे खाना दिया, फिर मैं मर गया। भगवान कहता है कि वो तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, वो 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 जो तू मांगता था वो देता था। अगर तू सेटिस्फाइड हो जाता कि मुझे इतना ही चाहिए, तो हम भगवान ने हमें कल्प वृक्ष के नीचे ही बिठाया है हर एक को। अगर आप कहते हैं ना वो शाहरुख खान का डायलॉग भी, अगर आप शिद्दत से सॉरी शिद्दत से जिसे चाहेंगे वो आपके पास आएगा। और वो बहुत सच है। आप दिल में मांग के तो देखिए, मांग के तो आपने दवाइयां ही मांगी है सारी। पहले से डिक्लेयर कर दिया कि मेरे माता पिता को तो मुझे भी होगा। पहले से डिक्लेयर कर दिया कि आज बाहर जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। भैया दिमाग एक्सीडेंट में तो होगा ही। क्यों नहीं सोच के जाते कि वो कार में बैठा हूं, मैंने एक ओम चैंटिंग 2-3 बार कर ली है, और मेरी कार के आसपास जो है मेरी एनर्जी, जो ओम की एनर्जी होगी, अब तो मेरी कार पुलिस वालों को भी दिखाई नहीं देती है, और मेरी कार तो ऐसे स्मूथ जाती है। क्यों नहीं कर पाते ये हम? करें। मैं करती हूँ। एक भी टिकट नहीं मिलती मुझे कभी, नहीं तो बहुत क्योंकि सही। विश्वास है मुझे हम्म, कि मैंने अट्रैक्ट किया है कि कि मैं सेफ, मैं फूलों की तरह, हवाओं की तरह आराम से जाती हूँ। और लोग कहते हैं ओ जा रहे हो ड्राइव सेफ। भैया ड्राइव सेफ क्या, वो मरे जा रहे हो उधर तुम? बहुत बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया ये। कहीं पे भी जा रहे हो तुम, निकलने लगे हो, बोलोगे ड्राइव सेफ। भैया ड्राइव सेफ क्या, डर डर है क्या? ड्राइविंग करना कोई बड़ी बात है क्या? तुमने कितनी बार की है? क्यों नहीं कहते कि एंजॉय ब्लेसफुल, बी ब्लेसफुल, एंजॉय योर ड्राइविंग। जाओ, खुश जाओ, गाने सुनो, जाते समय गाने सुनो। ये नहीं कि फोन करके बोल रहे हैं किसी से, ये हो गया, उसने ये बोला था, उधर गया था, ये हो गया, वो हो गया, पूरा क्यों रिपीट कर रहे हो? पहली बात तो सुनो ही मत किसी की, कोई चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है। जब आप अपने आप को देखने लग जाएंगे ना, तो आपको बातें वो दूर से आती हुई दिखाई देंगी कि वो ये कह रहा है, ये गलत है। अभी क्या होता है, क्योंकि पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, अपने आप चीजें आती जाती है, डलती जाती है, आती जाती डलती जाती है। फिर वही दिमाग सोचने लग जाता है कि वो कल्प में हो, कहीं ऐसा ना हो कहीं शेर हो दूर में आ जाए शेर। फिर वो कहता दूर है, दूर ही रहने देता ना। उसने कहा कि वो कहीं आके मुझे खा ही ना जाए, तो आ गया शेर खाने के लिए। तो अभी क्या करते हैं कि 11:34 हो गए हैं। तो आप जो मेडिटेशन में जाते हैं, और आप मेडिटेशन के बाद शांति पाठ करके हम आज का सेशन एंड करेंगे। आपने जो बुक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। शायद पता नहीं, किसी का हैंड रेज हुआ नहीं है। या एक दीपक भाई ने, तो मैं दीपक भाई को बुलाऊंगा। अनम्यूट कीजिएगा दीपक भाई। ओके ओके ओके। नमस्ते। आपने बताया कि जो प्रेशर वगैरह आता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, उसमें खाना पीना रहता है और जो सोशल रिलेशनशिप रहती है। तो मैं जो यूनाइटेड नेशन का जो डेफिनेशन है हेल्थ का, वो पढ़ना चाहता हूँ इस वक्त। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। सो हमारा जब
छोटे से बड़े होते हैं तो बहुत रिलेशनशिप डेवलप होता है। कितने को हम तोड़ देते हैं, कितने को हम बनाए रखते हैं। कितना होता है कि लाइक फैमिली रिलेशनशिप होती है, वो आती है, हम ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता हमारा। लेकिन हमने जो सीखा है, हमारा आई एम साइंटिस्ट, और एनवायरमेंटल का पढ़ने का हमारा डिटेल में जाने का रहता था। तो जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं, उन्हें मतलब नेचुरल लाइक नॉट एयर, बट जो खाने में आ जाते हैं और जो हम श्वास लेते हैं उसके में आ जाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट रहता है हमारा शरीर के ऊपर। तो जो आपने जो जो फोकस किया है वो रिलेशनशिप के ऊपर है। आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया किया है। लेकिन दूसरा भी है जो इन्फ्लुएंस करता है अपने हेल्थ के ऊपर। सो हमारा यही कहना है कि थैंक यू फॉर डूइंग। एंड द लास्ट थिंग, वो बोलता है कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट मेडिसिन। सो जब रिलेशनशिप के अंदर होता है, जो फॉरगिव छोड़ दिया, दिल से छोड़ दिया, तो बेस्ट मेडिसिन अपने हेल्थ को पहला फायदा होता है। एंड दैट्स ऑल। नमस्ते। तो उन्होंने बोला कि आपने रिश्तों के बारे में बोला, तो मैं खाने के बारे में भी बोलना चाहूंगी। जो आप खाना जो आप ओके, पहले तो खाना हम नीचे बैठ के खाते थे। ओके, जब हम नीचे बैठ के खाते थे तो हमारे दोनों हिप्स नीचे लगते थे, राइट। तो हमारी दो नाड़ियां हैं, एक सन है, एक मून है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। ओके, तो जो सांस हम लेते हैं वो वो नीचे तक जानी चाहिए, आपकी बॉडी में एक्टिवेट होनी चाहिए, सारी ठीक से जानी चाहिए। तो भगवान ने बड़े अच्छे अच्छे सेंसर बनाए हुए हैं। आपको मैं अभी और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं और आऊंगी, अगर आप बुलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो सेंसर जो है वो खत्म हो जाते हैं। डेढ़ एक से 1 घंटा 10 मिनट तक एक नाड़ी चलती है, फिर वो स्विच होके दूसरी पे आ जाती है। तो आपको तो मीन्स फीवर और ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो तो परफेक्ट बनाया उसने। तो क्या है कि कुछ खाने के तरीकों से, कुछ सोचने के तरीकों से वो सब मैसअप करा हुआ है। खाने का, जब आप नीचे बैठ के खाते हैं तो आपके राइट हैंड जो हैवी हो जाता है, सूर्य एक्टिवेट हो जाता है, तो आपका फूड डाइजेस्ट ठीक से होता है नीचे बैठ के खाने से। दिमाग उसको देख के खाने से, अगर आप उसको एक बार हाथ जोड़ के कहेंगे कि जो मैं खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने किस उससे बनाया है और कौन से केमिकल से उगाया है, मेरे को डिटेल में नहीं जाना, मैं भगवान मैं तेरे को ये भोग लगाता हूँ और तेरे को अर्पण करता हूँ। उसको खा के देखिए, वो फूड आपको कभी खराब नहीं करेगा। एक तो मन में संतुष्टि आ जाएगी, क्योंकि भगवान की जो दया है वो बहुत बड़ा वर्ड है। जब आप खाने को देख के कहते हैं ना कि तेरे को भोग दे दिया, अब तो मेरे अंदर जाएगा, तो वो जो दिमाग में कि वो कैसे एनवायरमेंटल में केमिकल चल रहे हैं, कैसे हवा दूषित हो गई है, कैसे हो गया है, क्योंकि वो मिरेकल तो करता ही है, हम अपने प्रिकॉशंस लेते ही हैं। पर जब खाना बन के सामने आ जाता है तो उसको देख के प्रणाम करके खाएं, आपका सूर्य एक्टिवेट होगा, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है, खाना पेट में जाता है और फिर वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, फिर वो गैसेस नहीं बनती, वो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती हैं। बाद में कोई सेशन अलग से लूंगी उसके उसके ऊपर कि कैसे वो ठीक होता है। खाने को देखते हुए खाएं, ये नहीं कि टीवी उठाया वो मुंह में डाला और किसी से बातें कर रहे हैं। चुप रह के खाना खाएं, करके तो देखें। वो क्या कहते हैं उसको, पीढ़ी बोलते हैं पंजाबी में। तो उसमें एक छोटा सा फट्टा सा होता है, उसके ऊपर रख के खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, पुराने आपके दादा वो सब उसी पे खाते थे। करके देखें, नीचे बैठे, एक तो नीचे बैठने से तो आपकी बॉडी से ऐसे ऊपर उठेंगे बैठेंगे तो ठीक होगी, आपका डाइजेशन ठीक होगा। चलो आज यही कर लेते हैं आज से। अभी एक्सरसाइज तो कराऊंगी, पर इतना गांठ बांध लें कि आप कोशिश करेंगे नीचे बैठ के खाना खाने की। अगर आपके घुटने जवाब देते हैं, कुछ भी है, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के खाएं, उसको प्रणाम करके खाएंगे, कहेंगे जो भी ये खा रहा हूँ ये तेरा ही भोग है और मेरे खुशी से खाएं। ये नहीं कि इसमें नमक ज्यादा है, कुछ नहीं। वो जब एक उसको भोग लगा दिया ना, कुछ भी ज्यादा है, कुछ भी कम है, तेल ज्यादा है, कोई बात नहीं, सब मेरे अच्छे के लिए ही है। करके देखें, जिंदगी ब्लेसफुल हो जाएगी, इतनी खुशनुमा हो जाएगी कि क्या बताएं। दवाइयों के तो नाम ही मत लें। मैंने उनको बताया था एक बार, दवाइयों जहां पे आपने दवाइयां रखी है ना, एक तो टेबलों के ऊपर दवाइयां बिल्कुल ना रखें।
जैसे आप अपने गंदे कपड़े जो अपने अंडरगारमेंट्स होते हैं जैसे छुपा के रखते हैं ना, किसी को दिखाते नहीं है, वैसे उनको छुपा के रखें। जगह जगह हर जगह पड़ी, किचन में पड़ी है, दवाइयां पड़ी हैं, वो दिख ही रही हैं तो वही चाहिए, वही आएंगी आपकी लाइफ में। उसको ऐसे कोने में ऐसी जगह पे रखें जो दिखे ना। उसका नाम ही कोई और रख दें, जैसे फूल कुमारी रख दें उसका नाम। क्रोसिन का नाम, ये बीपी की दवाई है, उसका नाम फूल कुमारी खाने जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ अपने आप ही 6 महीने में, देखिए मैं लिख के देती हूँ, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। दिमाग को वो बताए ही नहीं कि ये दवाइयां हैं। कहो जी फूल कुमारी जी आ गया खाने, 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे तूने किया क्या है, तू तेरा ब्लड प्रेशर तेरा शुगर ठीक है, जैसे उन्होंने बोला खाना खा के ठीक कर लिया। करके तो देखे। इतना बढ़ावा नहीं देना उन चोरों को। चोर आपके घर में घुस आए, उनको ये नहीं कहना कि अच्छा आओ जी बैठो, यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम आ ही गए तो बैठो। नो, हम कोशिश करके उनको कहेंगे किसी तरह निकल जाए, बात ही मत करो उनसे, खाना ही मत दो उनको, फास्टिंग करो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, निकालो तुम्हें क्या बीमारी है और उसका क्या सोल्यूशन है। दवाइयों को छुपा के रखो। खाते समय उनको नाम दे दो, नाम ही मत लो। बीपी को कोई नाम दे दो कि वो जो आपको पसंद है, कोई नाम दे दो। तितली दे दो, कुछ और दे दो ऐसा कि जो उड़ जाए बाद में। ऐसी चीजें करो, देखो करके। हाँ जी बोले, मेडिटेशन शुरू करेंगे अब फिर आप इतना, ही। अब इस समय का मर्यादा भी है, लेकिन अब हाँ जी 25 years ago, आप सूर्य नाली और चंद्र नाली बोले, आपने बताया 25 years ago my both nostril goes and come at the same time, so probably it's a सुषमा नानी, so दोनों चल रही है about उसके 25 उसके बारे में years। एक नया सेशन लेंगे, फिर बात करेंगे। इसको मैं बता सकती हूँ अभी, पर मैं अभी बता नहीं पा रही क्योंकि वो बहुत डिटेल है। तो बात करेंगे, आपको एक सेशन कर लेंगे उसी का ही, सांसों पे ही सेशन कर लेंगे एक। चले तो और किसी को कोई सवाल है जल्दी से पूछना है तो, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जल्दी से पूछ ले। 143 हुआ है, 11:45 तक, नहीं तो फिर मैं मेडिटेशन पे जाऊंगी। ठीक है अब मेडिटेशन तो, में हाँ मेडिटेशन पे ओके। तो ये मेडिटेशन है जो कि आप अम, इसमें क्या होता है कि आप अपने अंदर देखते हैं और अपने अंदर अम, पहले तो आपको ये देखना है, मेक श्योर करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। जैसे कि सपोज आपको डॉक्टर ने हार्ट की दवाई दी हुई है, तो हार्ट को कोई कलर देना है, जैसे कोई डार्क कलर दे देना, ब्लैक कलर ऐसा। तो फिर मैं उसको बताऊंगी कि वो क्लीन कैसे करना है। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है, जैसे आपकी बैक में दर्द है, या आपके आपके कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इशू है, या घुटने में दर्द है, या आपके बैक में दर्द है, या आपके दिमाग बहुत गर्म रहता है, गुस्सा बहुत आता है, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको आपने कलर देना है। ओके, सबसे पहले तो ठीक से बैठना है, बैक अपनी स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि मेरी योगा क्लासेस होती हैं डाउनी में, कि आप ऐसे किंग और क्वीन के जैसे बैठो। जब ऐसे बैठोगे तो अपने आप ही इधर काला माला हो जाएगा, सब चीजें इकट्ठी हो जाती है। शोल्डर पीछे करके बैठो, स्पाइन ठीक करो, अपने आप ही आपके कनेक्शन बनने जाएंगे, जो चीज दुनिया में चाहिए आपको मिलेगी। तो इसको मैं शावर टेक्निक कहती हूँ। और ये टेक्निक अभी तो हम कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, आप अपने शावर में भी कर सकते हैं। ओके, पर अगेन माइंडफुलनेस से करना, ये नहीं कि आंखें बंद करके शावर में खड़े हो गए और पता लगा गिर गए। आप, कई लोग बैठ के शावर लेते हैं, कई लोग खड़े होके लेते हैं, तो अपनी आंखों से अपना मतलब सोच उस तरफ लेके जानी है कि ओ। ओके, तो ये हाथ जो अपने घुटने पे रख लेने हैं नीचे की तरफ, जैसे कि वो जा रहा है, और जमीन पे पैर होने चाहिए। पैर जमीन से ऊपर नहीं होने चाहिए, पैर जमीन पे लगे होने चाहिए। और आप सामने देखें और आंखें बंद कर ले। We'll take couple of deep breath, inhale and exhale। और मैंने ये टेक्निक बहुत लोगों को दी है और बहुत काम किया है इसने, बहुत इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके कि आप पूछे नहीं। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप खुद ही चीजों को क्लीन करना लग जाएंगे। ओके, सो आप सोचें, आप कबीर कबीर के भगत हैं, तो आप सोचें कि आपने इनहेल लिया
और अपने अपना बंगला देखा, ये अपना शरीर रूपी बंगला देखा जो आप बैठे हैं, जिसके अंदर आपका नारायण बैठा है। आप एक और डीप इनहेल लेते हैं, देखते हैं कि सांस ऊपर आई, अंदर गई और बाहर आई। फिर से अपने बंगले को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं जो कि बैठी हुई है एक जगह पे। पैर जमीन पे लगे हुए हैं, हाथ आपके थाई पे पड़े हैं, घुटनों को टच कर रहे हैं। आंखें बंद है, एक स्माइल है फेस पे कि आज नीलम जी पता नहीं क्या बताने वाली है। कहती तो है लाइफ चेंज हो जाएगी। देखता हूं मैं, ये भी करके देख लेते हैं। सिंपल ही है, उसमें क्या है, करता ही हूं मैं तो। ठीक होने के लिए सब कर लूंगा, कर लूंगी, तो करके देख लेते हैं। तो सोचे कि ये फिर से बंगला है ऊपर यूनिवर्स में। जस्ट इमेजिन करें कि आपके देवी देवता जिसको आप मानते हैं, आपके पूर्वज उधर खड़े हैं आशीर्वाद देते हुए। कह रहे हैं कि जब अपने आप को तूने सोच ही लिया है कि ये बंगले को ठीक करना है, तो हम तेरे को पूरी मदद करेंगे। क्या चाहिए? तो तुम बोल रहे हो कि वो मुझे क्लीन करने के लिए अपने अंदर से चीजों को, चिंता को, जो भी कुछ अटका हुआ है उसको मुझे क्लीन करना है। आज मुझे डिवाइन लाइट दीजिए, डिवाइन पानी दीजिए। तो वो इमेजिन करें कि वो तथास्तु बोलते हुए ऊपर से उन्होंने हाथ अपने देने के मोड में रख दिए, और वहां से यूनिवर्स से कोई डिवाइन लाइट आपके सिर पे आ रही है, जो कि बहुत सॉफ्ट है, एक मिस्ट की तरह भी है। उसको आप कलर दे सकते हैं, पर्पल कलर दे सकते हैं, स्काई ब्लू, कोई लाइट कलर दे सकते हैं। आपके सिर पे धीरे धीरे आके वो पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप अपने बंगले में, अपने शरीर में देखते हैं, तो जहां पे आपको इशू है वहां को, उस एरिया को आप काला कलर दे देते हैं। जैसे कि सपोज आपको, आपका ब्लड का प्रेशर कहाँ पे आप देखते हैं उनको, उस पर दीजिए। या आप देखते हैं कि आपका हार्ट बहुत दर्द कर रहा है, आपके बहुत होल्ड किया हुआ है, बहुत दुख है उसमें, उसको काला कलर दे दीजिए। या आप देखें कि वो मेरी स्टमक से चीजें निकलती नहीं है, पॉटी नहीं आती, तो वहां पे कलर कर दे काला। या घुटने में इशू है, जो भी जहां पे बैक में इशू है उसको थोड़ा काला रंग दे दे। अब आप फिर से ऊपर देखते हैं, जमीन, बॉडी में कहीं कहीं काला रंग है, कहीं कहीं पे नहीं है। अब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी कर दूं, ये उंगली में भी दर्द हो रहा है, यहाँ भी कर दूं क्या, कान में दर्द हो रहा है, कर दूं क्या, जहां पे दिल करता है करें। ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है, वो जो मिस्ट की जैसे आ रही थी, वो थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा और प्रेशर, थोड़ा सा पानी के जैसा हो गया है, कि जैसे आप शावर लेते हैं, तो शावर के जैसे बहुत ही उसका पानी का टेम्परेचर जो है बहुत सुंदर है, एकदम परफेक्ट है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है। ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा। सो एल्कलाइन वाटर आ रहा है ऊपर से, आप देखते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट है, और आपके सिर पे गिर रहा है। आपके सिर से, सिर की चोटी से गिरता हुआ आपकी बॉडी के ऊपर बह रहा है। अब देखें कि वो बहता हुआ, क्योंकि उसमें डिवाइन पावर है, तो वो आपके बॉडी के अंदर से आपकी गंध को निकालता है। जस्ट इमेजिन करें कि वो पानी गिरता हुआ आपके शोल्डर पे गिरा है, आपके पीछे गिर रहा है, आपकी छाती पे गिर रहा है। आप अपनी गर्दन को थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं, ताकि आपकी छाती के ऊपर ज्यादा गिर सके। आप कर देख रहे हैं धीरे धीरे वो पानी बहुत डिवाइन सा, वो पावरफुल है, डिवाइन वाटर है, मैजिकल। तो वो आप देखते हैं कि वो जो काला रंग है, जो थोड़ा थोड़ा धुलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा धुलना शुरू हो गया, थोड़ा सा निकलने लग गया है। जैसे कि आप बालों को कलर करते हैं तो वो निकलता है बालों से, ऐसे ही वो काला रंग वहां से निकल के आपके जहां पे आपने डाला है वहां से धीरे धीरे निकलने, बहने लग गया।
वो आपकी स्पाइन से होता हुआ आपके पीछे कुर्सी पे होता हुआ वो नीचे टप टप गिरने लग गया, या आपके घुटनों में से होता हुआ पानी वो आपके टखनों की तरफ, आपके एंकल्स की तरफ जा रहा है। The wine water coming towards your shoulders, back, touching your chest, your arms, your elbows, your wrist, your hand. हैंड से ऊपर होता हुआ वो घुटनों की तरफ जा रहा है, लाइक इट गोइंग टुवर्ड्स योर नीज, गोइंग डाउन। देखो कि जमीन में जाते ही मदर अर्थ में समा जाता है, वो एकदम साफ हो जाता है। फिर आप देखते हो कि वो और पानी थोड़ा सा और पावरफुल हो गया है, और कलर निकल रहा है आपके गर्दन के पीछे से, आपके सिर के अंदर से। आपको पता भी नहीं था कि उधर भी काला रंग था। वो सोच विचार निकल के बहते हुए आपकी गर्दन की तरफ जा रहे हैं, आपके शोल्डर्स, स्पाइन, स्टमक की तरफ। डिवाइन पानी आपको गीला नहीं कर रहा, पर आपकी चीजों को निकाल के लेके जा रहा है। वो नीचे इमेजिन करें कि कुर्सी में से टप टप काला काला पानी गिर रहा है नीचे, उसकी लाइन ही बन गई है पानी की, काले काले की, और वो नीचे गिर रहा है। आप अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं कि वो घुटनों के ऊपर जा रहा है वो पानी, और शावर थोड़ा तेज। तो क्या करते हैं, आपका और जा रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है, और वो शावर और थोड़ा सा तेज हो, आप थोड़ा सी गर्दन को और पीछे कर लेते हैं ताकि आपके, और सिर थोड़ा ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं ताकि आपके माथे पे भी वो पानी पड़े, आपकी आंखों पे। आंख वहां पे काला नहीं है, पर फिर भी वहां से आपको डिवाइन पानी लेना है, आपको अपनी पूरी बॉडी में से निकालना है। आप अपनी गर्दन में जो साइनस है, और नाक के अंदर साइनस इशू है, और नाक निकला और जुकाम है, वो सारा ही कफ काला निकल निकल के जा रहा है। इमेजिन करें कि छाती से होता हुआ वो नीचे जा रहा है, और आपकी थाइस पे, और वो पानी कुर्सी के नीचे, वो आपके हिप्स के नीचे से बह रहा है, नीचे जा रहा है। जब वो जमीन पे जा रहा है तो वैनिश हो जाता है, वो मदर अर्थ उसको समेट लेती है। आपके पैरों की उंगलियों में से पानी जा रहा है, काला काला निकल के जा रहा है। अभी बहुत कम हो गया है, फिर से जा रहा है। फिर आप ऊपर देखते हैं कि और डिवाइन को कहते हैं थोड़ा सा शावर को और तेज कर दो, तो फिर वो और तेज कर देता है, थोड़ा सा और तेज। पर वो प्रेशर इतना अच्छा है, आपको इतना मजा आ रहा है, इतना पानी का टेम्परेचर बढ़िया है। आप अपने एक शोल्डर को कभी आगे करते हैं, कभी आप दूसरे शोल्डर को आगे करते हैं, और कभी आप गर्दन को नीचे करते हैं कि आपके पीछे से भी जा रहा है वो सब। आप देखते हैं कि काला काला निकल के जा रहा है, आप इधर उधर हटाते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाते हैं कि वो ये पानी नीचे चला गया है, और आप देख रहे हैं कि जहां से वो काला काला था वो हट गया है, वो नीचे से थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा रह गया है और हट गया है। वो नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे वो फंसा हुआ है। तो आप वो इमेजिन करें कि आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाएं और देखिए, इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक हैंड शावर आ गया है, वो भी डिवाइन शावर है, और वो हैंड शावर से आप उसको अपने उस एरिया में ले जा रहे हैं, अपने हार्ट पे लेके जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से धुल जाए। आप अपने एरिया में, अपनी कमर पे, अपने बैक पे, वो शावर को अपने रियल हाथ से आप देखें कि डिवाइन शावर है, और आप उसको लेके जा रहे हैं, और वो जहाँ पे थोड़ा सा रह गया था वहां पे आप थोड़ा सा पास ले जाके उसको धोते हैं, और उसको रखते हैं, और वो आप अपने लातों के ऊपर वो हैंड शावर से डाल रहे हैं, और वो पानी नीचे जा रहा है, थाइस पे, नीज पे, वो बहता हुआ आपके कार्ब्स पे जाता है, जाता है, जाता है। आप अपने हाथ खोल देते हैं और हैंड शावर चला जाता है, फिर से आप अपने हाथ अपनी थाइस पे रख लेते हैं, और देखते हैं कि पानी जाता ही जा रहा है, वो क्लीन हो गया है, क्लीन वाटर आने लग गया है। और फिर से देखते हैं कि अब वो डिवाइन जो लाइट थी उसका कलर जो है वो स्काई ब्लू हो गया है, जो पानी आ रहा था थोड़ा सा स्काई ब्लू सा हो जाएगा, वो और भी अच्छा हो गया, अल्कलाइन हो गया है। और आप देखते हैं कि आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो गई है। और वो नीचे जाते हैं, नीचे आते ही आप देखते हैं, नीचे मुंह झुका के देखते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है आपके पैर। आप अपना राइट पैर धीरे से थोड़ा सा उठाएं और देखें कि सारा पानी चला गया है। फिर आप अपना लेफ्ट पैर उठाएं और देखें सारा पानी चला गया है, और वो देखें कि वो आप पूरे क्लीन हैं। तो आप देखते हैं कि वो मिस्ट जैसे बन गया है, लेटर ऑन वो थोड़ी एयर सा बन गया है, और वो सारी आपकी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे जैसे
जैसे कि एक फॉग सी होती है, ऐसे की तरह से जा रहा है, और पूरा बॉडी को जैसे ब्राइट हो गई है, पूरी ब्राइट हो गई है, ब्राइट लाइट हो गई है। बहुत हल्की फील कर रहे हैं आप, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, बहुत सुंदर फील कर रहे हैं। और वो सारा आपकी मिस्ट जो है वो आपके पैरों की तरफ जा रही है, पैरों पे लग गई, या आपकी हील पे, आपकी थाइस पे, आपकी आपकी बैक पे। आप चेयर से थोड़ा सा आगे को हो जाते हैं ताकि वो मिस्ट जो आपकी बैक पे, आपकी स्पाइन पे भी लग जाए। आप अपने राइट की तरफ झुक जाते हैं ताकि लेफ्ट के नीचे भी चला जाए, फिर लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं ताकि राइट की तरफ चला जाए। तो आप देख रहे हैं कि आप फील सो लाइट। ऐसे लग रहा है कि सब चीजें, सब अंग अंदर अपना काम करने लग गए हैं, सब अपना प्रॉपर काम करने लग जाएंगे। तो आप अपना हाथ धीरे से, राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए, और कहिए अपने बंगले को, अपनी बॉडी को, कि मैं तेरे को ऐसे ही क्लीन करता रहूंगा, मैं तेरे को ऐसे ही डिवाइन शावर देता रहूंगा और क्लीन करता रहूंगा। और मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को बहुत अच्छे से रखूंगा। दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ, तू मेरे लिए एक तरफ, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। दुनिया को छोड़ के पहले मैं तेरे को देखूंगा और तेरे को ही प्यार करूंगा। तो अपने हार्ट पे रख के ऐसे ही एक प्रॉमिस किया आपने। फिर धीरे से आम अपना हाथ अगेन से अपनी थाइस पे ले गए और अपने शोल्डर को सीधा किया, राजा के जैसे बैठ गए। बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। सो धीरे धीरे करते हुए हाथों को नमस्कार की पोजीशन में अपने हार्ट के पास ले आए ताकि हम थैंक यू कर सके। तो हम प्रेयर करेंगे, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्माइल करते हुए फेस पे कि शांति है मेरे अंदर, मेरे आसपास, मेरे परिवार में, मेरी दुनिया में शांति फैली हुई है। और जस्ट इमेजिन करें कि वो सारी मिस्ट जो थी वो फैलती ही जा रही है दुनिया में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखें अभी भी बंद रखेंगे, आप अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लेंगे। थैंक यू सो मच कहते हुए अपनी बॉडी को टच करेंगे, शोल्डर्स को, एल्बोस को, अपने रिस्ट को, अपने हाथों को मलते हुए अपनी बॉडी पे से, लातों पे से, सबको हाथ लगा के थैंक यू सो मच। और जब अब आप आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियों को देखेंगे, वहां पे देखेंगे आपके सारे 5 बॉडी एलिमेंट, सब कुछ उधर ही है, ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट्स। तो आप अपने हाथों को किस करेंगे, अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप ये एक्सरसाइज अपने शावर में रोज कर सकते हैं। थोड़ा सा समय बिताएं, थोड़ा सा समय अपने साथ बिताएं, और माइंडफुलनेस के साथ। ये नहीं है कि ओ आपने आंखें बंद कर ली, शावर में गिर गए। जो आपको ठीक है, जैसे ही है, सुबह करें ये एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले करें, माफी मांगे लोगों से, लोगों को माफ करें, लिखें। ये एक्सरसाइज बेड पे जाने से पहले बिस्तर पे, बेड पे बैठ के कर लें 5 मिनट के लिए। देर नहीं लगती ब्लेसिंग आने के लिए, सिर्फ हाथ खोलने की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये माँ सरस्वती जो मेरे अंदर समाती है और जो नारायण मेरे अंदर बोलता है, वो बहुत लोगों की से दुख को दूर कर देगा। धन्यवाद। नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे भक्त समाज के सब भक्तजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी जो आपने टिप्स दी है, मेडिटेशन कराया है, तो हमारी विनंती है हमारी टीम की कि आप महीने में एक बार जरूर हमारे लिए समय निकालो और हमें मार्गदर्शन दो। हम अब समझ गए कि भाई मेडिटेशन कम करो,
अरे ज़्यादा करो, अरे मेडिटेशन ज़्यादा कम करो और मेडिटेशन ज़्यादा करो। मेडिकेशन को कम करो, मेडिटेशन ज़्यादा करो। तो इसीलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अभी नीलम जी को हम उसके भक्त समाज का जो ऋण है हमारे पास, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और अगला संडे हम यही विषय मेडिटेशन पे श्रीमान राजू भाई डाया भाई भक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और नीलम जी भी वापस आएंगी, हमको लाभ देंगी जरूर और जरूर। कबीर विजडम की अभी मित्र हो गई है। थैंक यू नीलम जी। यस। सो एंड सो सोने राम थैंक यू कबीर। सबको। राम कबीर। और मेरा हाँ, यही कहना है, जो भी आपको जो कुछ कराने आते हैं, आप उसको दिल से लीजिए। जो कुछ कराने आते हैं, वो देखें क्या कह रहे हैं। अपने आप को देखें, बस अपने आप को देखें, किसी को नहीं देखें कि वो क्या कर रहा है। जो आपको समझ आता है, आपकी झोली में गिरता है, वो ही ले लें। कोई बात नहीं, अगर कुछ बातें गलत भी हो गई हैं, मैं भी आपसे क्षमा याचना भी करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो और कुछ किसी को दुख दिया हो, या किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, या कुछ भी गलत मुंह से निकल गया हो, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। और मैं आगे से जरूर, जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग हंस के मुझे बताते हैं। और एक बात और जाते आते, मैं अपने योगा के बच्चों को सिखाती हूँ कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो कहते हैं ना कि मंदिर में जाके ऐसे तालियां बजाओ, हमेशा बजाओ, ये एक्टिवेट होते हैं। हंसो, नकली हंसो। 3-4 बार नकली हंसोगे ना, हा 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 हा, तो 5वीं बार असली हंसी निकलेगी। और वो जो हंसी के जो केमिकल है ना, वो आपकी बॉडी में निकल जाते हैं। आपकी बॉडी को नहीं पता कि कैसे निकले, पर वो निकल जाते हैं और वो आप खुश हो जाते हैं। फिर और बातें करेंगे, बहुत खजाना है मेरे पास। थैंक यू सो थैंक यू मच। नीलम जी। अभी हम समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। थैंक यू। राम कबीर सबने। जीतू भाई जस्ट एंड इट।